Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हेन पर्सन और मैनेजर who has control over such cost, profit, and investment center of business is assigned for responsibility, then it is known as responsibility accounting. सेम बच्चों सेकंड मीनिंग देखते हैं। When a system of accounting is so developed that revenue and costs are reported so as to relate them to the manager who has the control over such costs and revenue, the system is called responsibility accounting. इन शॉर्ट बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में जब कोई पर्सन या मैनेजर को बिजनेस के प्रॉफिट, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाए और उसके आधार पे अकाउंटिंग किया जाए तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहा जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच costs are identified with person assigned to their control rather than with the product or function is known as responsibility account। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर कॉस्ट और प्रोडक्ट के कंट्रोल के लिए पर्सन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, नहीं कि प्रोडक्ट को। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ वी आर टेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ इन पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी accounting is a system of cost control whereby each item of expenditure is assigned to the manager who can best influence it by his actions. Reports are prepared for determining for actual performance is in accordance with the planned figures, and if actual and budgeted data difference arises, then calculation of variances and find the causes of variances and take correct action। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बच्चों ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर मैनेजर द्वारा बेस्ट एक्शन के आधार पे एक्चुअल एंड बजटेड डेटा को कंपेयर किया जाता है, और अगर एक्चुअल एंड बजट डेटा में डिफरेंस अराइज हो तो उसे वेरिएंसेस का नाम दिया जाता है और वो वेरिएंसेस के कोजेस को, कारण को फाइंड किया जाता है और करेक्ट एक्शन लिया जाता है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में बच्चों मैनेजर को 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फर्स्ट, कॉस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर्स। सेकंड, प्रॉफिट सेंटर्स। थर्ड, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। दीज 3 आर कॉल्ड मेन बीज सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट का कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग समझने के बाद बच्चों उसके अंदर मेन पार्ट समझने जा रहे हैं। Meaning of divisional performance measurement. When in business, person doing their work with responsibility of cost, profit and investment, then evaluation of person working from these 3 responsibility center is known as divisional performance measurement। जब बच्चों को मैनेजर या पर्सन की वर्किंग कैपेसिटी
कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीन रिस्पॉन्सिबल सेंटर के आधार पे डिसाइड की जाए तो उसे डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहा जाता है। मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ a division is an important managerial tools need for control purpose. The main object of business is to maximize profit. Then each department performance is measured in terms of profit contributed by each of the department. The following two are main techniques used to measure performance. Now we are taking methods oblique techniques used to measure performance. We are taking first method, that is called return on investment, in short ROI. The most common method of measuring the performance of an investment is the return on investment method. ROI is used as measure of success or failure of company or its divisions. Generally, the efficiency and degree of success of any business enterprises is measured on the amount of its profits, but the absolute figure of profit is not enough to give any such opinion, but also comparison with investment is important. Now, formula for ROI, return on investment equal to net profit upon capital employed or investment into 100. Now we are taking second method for measuring performance, that is called residual income. As an alternative to rate of return on investment, General Electric Company developed the concept of residual incomes measure divisional performance. Residual income of a division is the income that remains after deducting interest on the value of the division's investment in assets from the net income of the division. Now in paragraph, generally weighted average cost of capital is used as rate of interest to be charged. Suppose division A has budgeted net income of rupees 1 lakh this year and budgeted investment is rupees 5 lakh. The weighted average cost of capital of company is 15%. So the residual income of the company would be as follows. नाउ रेसिडुअल इनकम का कैलकुलेशन हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल जो हमने देखा उसमें डिविजनल नेट इनकम अवेलेबल है रुपीज़ 1 लाख, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे 15% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑन रुपीज़ 5 लाख इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीज़ 75,000। डिविजनल नेट इनकम में से 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा रेसिडुअल इनकम रुपीज़ 25,000। इन सिंपल लाइन फॉर्मूला समझना हो तो रेसिडुअल इनकम इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अब बच्चों और बहुत सारे फॉर्मूला है जिसका यूज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में करना है। फर्स्ट फॉर्मूला, turnover equal to sales upon operating assets into 100. सेकेंड, प्रॉफिट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू मिनिमम रिटर्न अपॉन ऑपरेटिंग असेट्स इनटू 100. हम यहाँ बच्चों नोटिंग में मिनिमम रिटर्न का फॉर्मूला लिखेंगे, मिनिमम रिटर्न इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम माइनस रेसिडुअल इनकम। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आगे बच्चों आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने मैनेजमेंट अकाउंट का स्टार्ट किया, उसका आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थियरी देखा बच्चों। अब उसके हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एग्जांपल हम बोर्ड पे लेते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जवाबदारी हिसाबी लक्षित पद्धति। अब ये पूरे टॉपिक का जो बेस है बच्चों, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेशन बहुत इजी है पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो बिजनेस के मेन 3 खर्च है बच्चों, या मेन 3 एलिमेंट है। एक सबसे पहला कॉस्ट, फिर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के लिए कई बार प्रोडक्ट को बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में लिया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर यहाँ जो मैनेजर है, जिसको वर्क असाइन किया है, वो मैनेजर को कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट तीनों प्रकार की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उसके आधार पर अकाउंटिंग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी अगर आपने कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेशन किया हो बच्चों, फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है, और आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टीवाई में पढ़ा हुआ है, तो एक्चुअल डेटा और एस्टिमेटेड डेटा के डिफरेंस को वेरिएंसेस नाम देते हैं। पर इसके अंदर बच्चों जो भी डिफरेंस आता है कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए रिस्पांसिबल माना जाता है एक मैनेजर को या पर्सन को। तो पर्सन की रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर अगर अकाउंटिंग करो बच्चों तो उसे बोला जाता है रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। और ये जो 3 मेन फैक्टर्स है, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, इसके आधार पे पर्सन एक्टिविटीज करे और उसके आधार पे वर्किंग करे तो उसे बोला जाता है डिविजनल परफॉर्मेंस ऑफ मेजरमेंट, विभागीय कामगिरी मूल्यांकन। तो पूरे टॉपिक में बराबर याद रखना है, पर्सन को मेन अपॉइंट किया जाता है, रिस्पांसिबिलिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और वो कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट के आधार पे उसका वैल्यूएशन किया जाता है, जिसे डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहा जाता है। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है टेक्स्ट बुक मेरे साथ है, आप लोग भी टेक्स्ट बुक कैलसी और खुद के बुक साथ में ले लीजिए। अब टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों पेज नंबर 37 पे पहला और दूसरा समय जो हमारे लायक नहीं है, 3, 4, 5 तीन ही समय, और वो भी बच्चों 5-5 मिनट के, जो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके मेन सारे सम्स यूनिवर्सिटी की मैं आपको मटेरियल कॉपी में से करवाऊंगा। तो अब बच्चों रिस्पांसिबिलिटी अकाउंट पेज नंबर 40 सम नंबर 3 पे आप आ जाओ। मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तो आपको लगेगा अक्सर ये तो एफआर बीकॉम का टॉपिक है, पर बच्चों इसको करना बहुत ही जरूरी है। चलो वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन 3, विष्णु लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा ईयर 2013, जिसके अंदर एवरेज टोटल एसेट्स है 100 लाख, सेल्स है 160 लाख, नेट प्रॉफिट है 6 लाख, रेट है 40%। फिर बजटेड फिगर है 14 के, उसमें भी एसेट्स है, सेल्स है। आपको करना क्या है, पैराग्राफ, if the budgeted figures are attained what will be the change in return on capital employed expense difference। हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लेने जा रहे हैं 2013 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसे प्यार से बोला जाता है आरओआई, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट पीबीआईटी, याद आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब बच्चों यहाँ मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट है 100 लाख, कितना है 100 लाख 2013 में। अब मेरे पास प्रॉफिट है बच्चों नॉट नंबर 1, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है। अब इसमें से कितना टैक्स कटा है 40% टैक्स कटा है। अब इंटरेस्ट ना हो तो बच्चों मुझे प्रॉफिट कौन सा लेना पड़ता है, तो इसके अंदर में लेना पड़ता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या करूं, सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, उसमें टैक्स कितना कटा है 40, तो पीएटी कितना होगा 60। अब पता रखो बच्चों, ध्यान देना 60 पे वैल्यू है मेरे पास 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 100 पे हाउ मच, जैसे पता रखोगे बच्चों पीबीडी आएगा आई थिंक 10 लाख रुपीस।
ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऊपर रख दो बच्चों 10 lakhs, ठीक है। अब इनटू 100 करोगे तो आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होगा बच्चों लगभग मेरे ख्याल से 10%। आंसर चेक करो बच्चों, 10 लाख अपॉन 100 लाख इनटू 100 आ था बच्चों पहला जवाब। अब मुझे जाना है 2014 2014 मेरे पास है बजटेड डेटा। चलो इसके अंदर बच्चों सेम आरओआई कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट प्रॉफिट, पीबीआईटी लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसके अंदर जो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एवरेज टोटल एसेट्स जो आपने जो 120 लाख मिला, आवानी जो वैल्यू लीधी है कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा मीनिंग क्या है बच्चों एवरेज टोटल एसेट्स, ध्यान रखो। हां आज बीजी कोई वैल्यू ना समझता, ठीक है। टोटल एसेट्स इज इन्वेस्टमेंट के वाइज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बच्चों, मेरे पास नेट प्रॉफिट नॉट सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना है बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,60,000 ना चला है। क्या करूं मैं, और रखूं मैं सपोज पीबीटी 100 टैक्स लेस करोगे 40 तो पीएटी 60 पद रखो 60 पे है मेरे पास 6,60,000 तो 100 पे हाउ मच, तो बच्चों मेरे पास पीबीटी का वैल्यू आ जाएगा। मेरे पास टोटल के लिए कोई है नहीं तो मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों, लगभग वैल्यू आएगी 11 लाख रुपए। यस मुझे ये 11 लाख क्या रखना है, इनटू 100 करोगे, जैसे इनटू 100 करोगे बच्चों आरओआई आएगा आई थिंक 9.17%। टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करो तो बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यस आ जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो ये सामने हो गया बच्चों आपका 7 मार्क का सम, पूछा वाली संख्या था 100%, पर बच्चों इसका 4 और 5 नंबर का सम है लास्ट 5 साल हो गए। 4 नंबर का सम मोस्ट टाइम भी कर दो, 5 नंबर में मोस्ट टाइम कर दो, फावर टाइप में सम कोई बार पूछे जाते हैं। क्या है में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को फॉर्मूला पीबीआईटी, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना पीबीटी दे लेना है, ठीक है। ये दोनों आंसर के बाद बच्चों मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं सम नंबर 4। चलो इसको रख लो बच्चों, नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स पर अगेन कंटिन्यू, क्योंकि आप लोग बॉडी फिक्स रखते हो कि मुझे पता नहीं है, और आशा रखते हैं कि बॉडी फिक्स रखोगे। चलो विष्णु लिमिटेड के बाद मेरे पास सम नंबर 4 ब्रैकेट में आप करोगे इलस्ट्रेशन 4 इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों, पेज नंबर 40। The following are information of 3 division A, B, C of the company for year 2015. Division operating profit investment. Find out ROI for all 3 divisions. Second, if administrative expense 12 lakh 10,000, a portion among the division in the ratio of investment, then what will be the ROI? If the interest on capital is calculated 10%, then what will be the ROI? यानी पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द मेन सोर्स। चलो ऑप्शन नंबर 1 पहला आंसर कैलकुलेशन ऑफ आरओआई। आरओआई का मीनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का फॉर्मूला आरओआई इक्वल टू नेट प्रॉफिट, या फिर यहां कह सकते हैं जो उन्होंने वर्ड दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे इन्वेस्टमेंट या फिर उसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चलो डिवीजन ए, इसमें मेरे पास है नेट प्रॉफिट 6,40,000, बाजू में इन्वेस्टमेंट दिया है बच्चों और एकदम फुद्दू जैसा सम। फिर बी में बच्चों मेरे पास है 30 लाख रुपीस प्रॉफिट, नीचे मेरे पास 150 लाख इन्वेस्टमेंट। सी के अंदर बच्चों मेरे पास है 60 लाख, नीचे 375 लाख इनटू 100। जैसे बच्चों आप डिवाइड करोगे आपको आंसर नंबर 1 मिल जाएगा। मेरे पास टोटल नंबर बच्चों पहले में 8%, दूसरे में 20% और 8%, 8% और तीसरे बच्चों पैसेज आप लोग चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट देख के आंसर लिख रहा हूँ जिससे मैं धूप ना हो। चेक करो तो हाँ पहला 8% 20% बराबर है। बोलो इसमें किसका बेटर है आरओआई? आइए चलो आइए ऑप्शन बी में। चलो सेकंड ऑप्शन 2 नंबर, अब उनका कहना है इफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12 लाख 10,000 then what will be the
एपोर्शन एंड व्हाट विल बी द ROI। तो अब बच्चों मेरे पास यहाँ मुझे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, डिवीजन सी। सबसे पहले बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना? चलो हम लेके आ रहे हैं सेकंड ऑप्शन, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगर 12,10,000 तो क्या पोजीशन होती है हमें देखना होगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, उसके लिए सबसे पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो लिखे टेक्स्ट बुक में से 6,40,000 પછી 30 lakhs અને सेकंड में जो थर्ड में जो बच्चों 60 lakhs। अब इसमें से मुझे लेस करना है, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कितनी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की? 12,10,000। कौन से रेशियो में? अपोर्शन बिटवीन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो। इन्वेस्टमेंट कितना है? अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लो, यहाँ इसको लेस करेंगे बच्चों तो नीचे मिलेगा मुझे नेट प्रॉफिट जो यूज करना है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट के रेशियो के लिए 80 लाख यानी 80, 150 लाख यानी 150 और 375। ये जीरो कॉमन निकले, कितने से भाग चलेगा? आई थिंक 5 का टेबल चलेगा, 5 × 16 आएगा, यस 5 30 आएगा। 375 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आई थिंक आएगा 75। इससे छोटा रेशियो हो सकता है? मेरे ख्याल से इससे छोटा नहीं होगा। 16 30 75 आंसर देखो तो आंसर में भी सेम है, 16 30 75, 16 जैम 30 जैम 75। बांटो, जैसे 12,10,000 को बांटोगे बच्चों, पहले में वैल्यू आएगी 1,60,000, सेकंड में वैल्यू आएगी बच्चों 3 lakhs और थर्ड के अंदर वैल्यू आएगी 7,50,000। और जैसे माइनस करोगे बच्चों आपके पास रिसीव होगा नेट प्रॉफिट, पहले के अंदर 480, बी के अंदर आई थिंक 270 नहीं, आई थिंक 27 लाख, यस। और तीसरे में 60 में से जाके 53 है, उसमें से 50 गया यानी 52,50,000। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। अब मुझे गिनना क्या है? अगेन मुझे गिनना है ROI। ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिवीजन ए उसका नेट प्रॉफिट है 480, फिर इनटू 100। डिवीजन बी उसका नेट प्रॉफिट है 27 लाख। डिवीजन सी उसका नेट प्रॉफिट है बच्चों 52,50,000 इनटू 100। या इन्वेस्टमेंट ले लो बच्चों, ये राइट में 80 लाख 150 लाख, 80 लाख 150 लाख, थोड़ा मिनटे आगे पीछे हो जाए तो देखिएगा बच्चों, और यहाँ 375 लाख। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, पहले का ROI आएगा आई थिंक पहले में 6% आएगा, दूसरे के अंदर 27 लाख से 150 लाख से डिवाइड करोगे बच्चों तो आएगा 18%, और तीसरे ऑप्शन के अंदर अगर 5250 को 375 से डिवाइड करोगे तो आएगा 14%। यानी ये सिचुएशन भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट बी उसका ROI सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं तीसरा ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर 2 पूरा हुआ, अब ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जाते हैं बच्चों। चलो नजर बोर्ड पे, तीसरे ऑप्शन में उसका कहना है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड 10% देन व्हाट विल बी द ROI। तो इसके लिए मुझे लग रहा है बच्चों जगह कम पड़ेगी, मैं पहला ऑप्शन निकाल देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इतना लिख लेना और फिर बच्चे जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे। चलो ऑप्शन 3, if interest on capital is 10%। चलो फिर से कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट पर्टिकुलर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी અને ऑप्शन सी। चलो तो टेक्स्ट बुक में जो प्रॉफिट लिखे हुए हैं बच्चों सामने से कॉपी कर ले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,40,000, 30 lakhs અને 60 lakhs लेस
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट। पहले में इन्वेस्टमेंट है 80 लाख, 80 लाख का 10% ब्याज दोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 8 लाख। सेकंड में 150 लाख का 10% लोगे तो वैल्यू आएगी 15 लाख। और तीसरे में 375 लाख है उसका 10% लोगे तो वैल्यू आएगी 3750। जैसे निकालोगे बच्चों यू विल रिसीव नेट प्रॉफिट। मुझे लग रहा है पहले में वैल्यू माइनस आएगी, यस माइनस 1,60,000। चलो उसके बाद सेकंड के अंदर आएगा 15 लाख और थर्ड ऑप्शन में 3750 जाएगा, आई थिंक 1250 2250 आएगा। यस ये हो गया बच्चों आपका थर्ड कैलकुलेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब इसमें बच्चों पहला ऑप्शन ले लें, ऑप्शन ए जिसके अंदर है माइनस 1,60,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो सेम ही है बच्चों 80 लाख इनटू 100। बी में फिर से नेट प्रॉफिट 15 लाख, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 150 लाख इनटू 100 और सी के अंदर है बच्चों 22,50,000 और नीचे इन्वेस्टमेंट है 375 लाख इनटू 100। अब बच्चों तीनों का आंसर करोगे कैसे? तो मेरे पास कैसे अवेलेबल मैं चेक करने जा रहा हूं। पहले में आएगा -2, यस -2%, बहुत ही खराब स्थिति। ओके उसके बाद बी में आएगा आई थिंक 10%, यस और सी के अंदर बच्चों देख सकते हैं आंसर आएगा आई थिंक 6% रिस्पेक्टिवली। ये हो गए आपके बच्चों तीनों सिचुएशन के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार के सम बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम टेक्स्ट बुक ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 6 गुजरात यूनिवर्सिटी 16 और पेज नंबर कह सकते हैं 41। तो बोले सर टेक्स्ट बुक के 2 सम आगे वो बच्चों लास्ट 25 सम में कभी नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस ही ऐसा समझ लो। ठीक है चलो नजरअंदाज। इसके बाद बच्चों मटेरियल कॉपी में टॉप क्वालिटी सम है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। द ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ 3 डिवीजन ऑफ कंपनी आर एज अंडर सेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट डिवीजन ए डिवीजन बी डिवीजन सी। क्वेश्चन 1 on the basis of operating profit ratio which division is most profitable? On the basis of ROI which division is most profitable? C from the two which measurement is more desirable? चलो पहला ऑप्शन है बच्चों 1 नंबर में A on the basis of operating profit ratio। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का दूसरा नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला। चलो डिवीजन ए जिसके अंदर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख रुपए, इसको बच्चों सेल से डिवाइड करो 38 लाख और इनटू 100 करोगे तो आपको आंसर रिसीव होगा आई थिंक 5.26%। हम बच्चों जो लखूँ तब कैलकुलेटर में चेक कर जो आप समझ सकते हो ऑनलाइन में टोटल करना डिफिकल्ट है। सेकंड बी उसके अंदर भी मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5 लाख जिसके अंदर सेल्स है 170 लाख इनटू 100 करोगे बच्चों तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 2.94%। और सी के अंदर बच्चों मेरे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 लाख रुपए, नीचे सेल्स है 2 लाख 200 लाख 200 लाख और बच्चों डिवाइड करोगे तो लगभग मेरे पास आंसर आएगा इनटू 100 करके 5%। ठीक है ये हो गया बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जो सिंपल लैंग्वेज में केवु होय तो नेट प्रॉफिट रेशियो आंसर एकदम सही है बच्चों। बोलो इसमें कौन सी बेस्ट पोजीशन है? यहां मुझे लग रहा है इसके अंदर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। चलो आंसर नंबर 2 ले ले बच्चों। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में इसे बोला जाता है आरओआई। चलो आरओआई क्या होता है बच्चों? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, या फिर कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चलो इस तरह ध्यान बच्चों, डिवीजन ए जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2 लाख रुपए और मुझे इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है 20 लाख। अब बच्चों आप इनटू 100 करोगे तो लगभग आंसर आएगा आरओआई 10%। चलो बी के अंदर है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो तो बीमा 5 लाख रुपए, और नीचे फिर से आप इन्वेस्टमेंट देखोगे बच्चों तो मुझे दिख रहा है 62,50,000, और इसको अगर बच्चों आप डिवाइड करोगे तो आई थिंक 8%, यस 8% आ जाता है। और उसके बाद बच्चों सी ऑप्शन है, और सी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो सी में मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10 लाख, नीचे इन्वेस्टमेंट है 80 लाख। आई थिंक इसमें तो एग्जैक्ट 8% आएगा, यस नहीं सॉरी 12.5%। डिवाइड करके चेक कर ले, कुछ गड़बड़ लग रही है, चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। यस एग्जैक्ट सही है। चलो अब इसमें कौन सा बेटर है, तो इसमें आप देख सकते हो डिवीजन सी बेटर है। अब थर्ड आंसर में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन, व्हिच ऑप्शन इज बेटर, ऐसा हमें दिखाना। पहले तो आंसर में लिखो, आप देख सकते हो फ्रॉम द अबव टू आरओआई इज मोर डिजायरेबल बिकॉज़ इट कंसीडर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां लिख सकते हो हियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड is better because it consider investment for calculation। इस प्रकार का आंसर आपको लिखना है बच्चों, तो आपका काम पूरा। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 5। इस प्रकार के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। यूनिवर्सिटीज के आजू बाजू घूमती है, और मेरे पास मटेरियल कॉपी में बच्चों 2015 से लेके 20 तक के सॉलिड क्वेश्चन है, और मेरा प्रॉमिस है बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो पहले लेक्चर में सफर याद रखते हैं बच्चों, थियरी मटेरियल कॉपी में वो थियरी के क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े आपको पढ़ने हैं, तीसरे और चौथे में, क्योंकि वो ऐसे में आपको काम लगेगा। ठीक है, मटेरियल कॉपी ની बात તમારે કશું વાંચવાનું નથી। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन के अंदर कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने पहले बोला है क्लास ग्रुप में पढ़ाने का गवर्नमेंट ने मना किया है, बट आप पर्सनली सुबह 9 से 12 और शाम को 4 से 7 हम होते ही हैं बच्चों। वीडियो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, तो आप लोग आ सकते हो बराबर। कोई ने गम्मे ने तकलीफ थाय આગળ भी कई ना આવડતું હોય, ધ્યાન કોમર્સ વાળા વિશે બાળકો ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટ કે મેનેજમેન્ટ હંમેશા અમે તમારી જોડે છીએ। અને જે સ્થિતિ કોરોનાની થઈ ગઈ છે બાળકો 99% ન્યૂઝ એવા આવી ગયા છે, जनरल ऑप्शन 100% રહેશે। तो मैनेजमेंट का चौथा चैप्टर है, इसमें से कोई भी 2 यूनिट कर लोगे तो भी आपको चलेगा, पर इट इज नॉट 100% श्योर। तैयारी आपको बधी करवानी। ओके मित्रों, ऑल द बेस्ट, जय माताजी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.